signal. All officials are requested to synchronize. आज राष्ट्र जब वंदे मातरम के गौरवशाली 150 साल का राष्ट्रव्यापी उत्सव मना रहा है, कर्तव्यबोध का संदेश देता भारत की राजधानी का भव्य कर्तव्य लेफ्टिनेंट कर्नल कृतिका पाटिल, लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य आनंद, स्क्वाड्रन लीडर नुपुर मलिक, मिसेस आरती, मिस स्वप्निला तथा लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवा support national initiatives. Navy has taken proactive steps to ensure Swasthya personnel, skilling its manpower, recruiting Agniveers, representing India across 640. पहले कभी नहीं देखा होगा और पहली बार इसे आप एक कॉम्बेटाइज रूप में देखेंगे। गणतंत्र दिवस 2026 पर भारत के मुख्य अतिथि हैं यूरोपीय परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा तथा यूरोपीय आयोग की माननीय अध्यक्ष। Ladies and gentlemen, the Republic Day parade this year is honored by the presence of President of the European Council, His Excellency Mr. Antonio Luis Santos da Costa, and the financial year 2019-20, while the defence exports rose to an all-time high of rupees 23,622 crore, reflecting the growing maturity of the domestic industrial ecosystem. The Union budget of 25-26 reinforced this momentum by allocating rupees 6.81 lakh crore to the Ministry of Defence, including rupees 1.8 lakh crore for capital expenditure, with 75% of modernization funds reserved for family with Portuguese, Indian and Mozambican roots. He grew up in a multicultural environment that shaped his political vision based on openness, respect and international cooperation. A law graduate from the University of Lisbon, indigenously designed naval platform and INS Bakshi, completing Project 75 submarine deliveries. Additional warships and logistics barges were launched, reflecting deepening indigenization. To validate combat preparedness. The Tri-Service Exercise 2025, led by the Navy, marked the first fully integrated Tri-Service exercise from the planning stage. The Indian Navy expanded its global footprint through sustained deployments across the Western Pacific, Mediterranean, Africa and the Indian Ocean region. Since January 2025, naval ships and aircraft participated in 18 bilateral, 8 multilateral and 31 maritime partnership exercises. Search and rescue and medical evacuation operations across the Indian Ocean region, while also assisting civil authorities within the country during the emergencies. Moving on to the guardians of the Indian skies, the Indian Air Force. India's aerospace power, while demonstrating exceptional operational capabilities, Akash-P, and integrated management system for air defense, ensuring seamless air defense across the Western Front. Indigenous counter-unmanned aircraft systems were rapidly mobilized, effectively neutralizing threats and preventing electronic tolling, वाहन scrapping और प्रशिक्षण सुविधाएं, कैशलेस दुर्घटना उपचार और राहगीर योजना जैसी सड़क सुरक्षा पहल में वृद्धि, वाहन सुरक्षा में सख्त मानदंड, भूमि राशि के माध्यम से डिजिटल भूमि अनुसंधान आधारित विकास को उत्प्रेरित किया गया है। भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 38वें स्थान पर है, बौद्धिक संपदा फाइलिंग में विश्व में 6ठे स्थान पर है एवं शोध प्रकाश। From India's spaceport, 1,000 completed orbits of the Bomko platform and the development of fully indigenous 32-bit space-grade microprocessors. India's through satellite-based reforecasting, disaster management, education outreach via Northeast Students Program of Awareness. Reinforcing India's steady march towards Space Vision 2047 and its emergence as a comprehensive, self-reliant 966 schemes and disbursed rupees 2.87 lakh crore to beneficiaries till December 2025, with major schemes including PEHL, MG Nrega, PM Kisan, National Social Assistance Program and Pradhan Mantri Awas Yojana. Under the scheme for special assistance to states for capital expenditure, more than rupees 83,000 crore was released in 2025-26.
States were allowed free industry. The Ministry, the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, significantly advanced India's manufacturing, innovation and investment ecosystem in 2025. Ease of doing business reforms reduced over 47,000 compliances, expanded the national single window of prudence and advanced Jan Vishwas legislation. Edgar Singh और CMT सेंट्रल स्कूल बैंड मास्टर सुबेदार मेजर जगन्नाथ राम और साथ ही अलीला कॉटनी बैंड ताकत वतन की हमसे है, देश शिवावर मोहे और वंदे मातरम की गूंज। driving progress in semiconductors, biotechnology and green hydrogen. Each special guest represents excellence empowered by opportunity. Among them are women entrepreneurs, self-entrepreneurs and Lakshmi, alongside participants supported under the soil and PM Vishwakarma, reflecting inclusive growth rooted in tradition and skill. Sharing the space are tribal change makers, transgender citizens, rehabilitation activities, Ganga water warriors, disaster response volunteers, Anganwadi workers, street vendors, and the construction workers of Kartagya and Kartagya Bhavan. Also present are Torture Roads Organization. ये दरअसल ऊपर से आधी एक था जहाँ कांसे से निर्मित 6 त्याग चक्र के गिफ्ट पूर्वी दिशा में राष्ट्रीय अस्मिता की हमारी पहचान राष्ट्रीय ध्वज जा रहा है। उसके कारण इसे रक्षा चक्र या सर्कुलर प्रोटेक्शन कहा जाता है। इन वृक्षों की संख्या लगभग 700 है। ये सभी वृक्ष हमारे वीर और कर्तव्यपरायण सैनिकों का मानव प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो दिन रात अपने कर्तव्य क्षेत्र में समर्पित भाव से देश और देशवासियों की सेवा कर रही है। अटल और अटल अपने लचीले और गर्वीले घोड़ों पर सवार समर स्मारक के इसी प्रवेश द्वार के सामने इंडिया गेट और समर स्मारक के बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल AP सिंह। देवियों सज्जनों, ये वो क्षण है जब गणतंत्र पथ आज राष्ट्र प्रेम
और राष्ट्र प्रथम के संकल्पों के साथ हम सबको अपने अपने कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा दे रहा है। यही वो भाव है जब अमर चक्र में प्रवेश कर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आइए शहीदों के प्रति श्रद्धा भाव से हम भी इस क्षण को आत्म हाथों में तिरंगा हो। और इसी बीच कर्तव्य पथ पर आगमन हो रहा है राष्ट्र रक्षा से जुड़ी गणमान्य विभूतियों का। सबसे पहले रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह और उनके पीछे एयर चीफ मार्शल AP सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल वायुसेना अध्यक्ष। और अब मंच की तरफ अग्रसर है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, नौसेना अध्यक्ष। और कुछ ही पलों में जनरल उपेंद्र द्विवेदी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, थल सेना अध्यक्ष महोदय का वाहन मंच की ओर अग्रसर होता नजर आएगा। और उनके बाद यहाँ पधारेंगे जनरल अनिल चौहान, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। थल सेना मंत्री श्री संजय सेठ हमारे बीच पधारेंगे। भारतवासी, हम भारत माँ की मिट्टी में जन्मे, जहाँ की मिट्टी हम अपने माथे पर लगाकर बड़े होते हैं और इसी माटी को हम माँ कहते हैं। और बात जब देश की गरिमा की आती है तो यहाँ हम सब एक ध्वनिता एक है, राष्ट्र अनेक पर राष्ट्र एक है। उसी का प्रतीक कर्तव्य पथ पर इस्लामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप आप देख रहे हैं, जो कि फूलों की भव्यता से सुशोभित हमारे संविधान के लागू होने के 76 वर्ष पूरे होने को दर्शा रहा है। और माननीय रक्षा राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री जी मंच की ओर अग्रसर होते हुए 77वें गणतंत्र दिवस की पावन भूमि बेला में संपूर्ण देशवासियों की ओर से कृतज्ञ राष्ट्र के श्रद्धा सुमन हमारे अमर सैनिकों को अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ आजादी के बाद से विभिन्न संघर्षों में 26,000 से अधिक शूरवीर सैनिकों ने देश की अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। इन अमर सपूतों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। और आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला मंच की ओर बढ़ता हुआ। दुनिया के 29 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत ग्लोबल लीडर एक नए परिवेश में कर्तव्य पथ आज गौरवान्वित है अपने प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए। फिजाओं में घुलती अद्भुत उमंग, लहराते तिरंगों का जोश, आगमन हो रहा है भारत के सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री जी का। आज हम सब चुनौतियों से सक्षमता से लड़ रहे हैं, सदा देश हित कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य का डट कर पालन कर रहे हैं, नापाक
इरादों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तभी तो खुले विश्व के कान, यही है श्रेष्ठ भारत की शान। दीपक से दीप जलाएंगे, जीवन में नवयुग लाएंगे, स्वदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम समर्थ भारत की सक्षम सेना है, ये आज सबको शान से बोध कराएंगे। आगमन हो रहा है भारत के संविधान के अनन्य साधक, हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों के अथिक अनुपालक भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष एवं रक्षा सचिव से मिलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी। हृदय में 140 करोड़ दिलों की प्रीत है, निष्काम सेवा ही एक कर्मयोगी के जीवन की रीत है। मानवीय सिद्धि का जब हमारी सेनाओं की त्रिशक्ति एक इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से हर मोर्चे पर तैयार है, तत्पर है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा। देवियों सज्जनों, आज का परेड अद्भुत है, जहां आप ऐसा नजारा देखेंगे जो अपने गणतंत्र के इतिहास में अद्भुत है। किस प्रकार भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयां संगठित होकर युद्धभूमि में दुश्मन को बर्बाद करती हैं। गणतंत्र के पावन अवसर पर आज जब राष्ट्र संकल्प का आगमन हो रहा है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, और उनके साथ में गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा एवं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष श्रीमती उर्सुला वॉन डेर लेयन। माननीय प्रधानमंत्री जी उनके स्वागत के लिए वहां उपस्थित हैं। We extend a very warm welcome to President, European Council, His Excellency, Mr. Antonio Luis Santos da Costa, a leading Portuguese political figure recognized for his commitment to dialogue, political stability and sustainable development. He joined the Portuguese Socialist Party and served in several key as well as strategic positions. He is the President of the European Council since 2024.
We also extend our heartfelt welcome to President, European Commission, Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen. She took over this leadership role in the European Commission in 2019 and elected for a second term as President of the European Commission in July 2024. और अब 173 रेजिमेंट की सेरेमोनियल बैटरी द्वारा मेजर पवन सिंह शेखावत के नेतृत्व में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यहाँ गन पोजीशन ऑफिसर हैं नायब सूबेदार अनुतोष सरकार। कर्तव्य पथ पर हमारे देश में ही निर्मित 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय वायु सेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षता धनखड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी, जिसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। On the auspicious occasion of Republic Day, 21 gun salute is the highest military honor presented to the national. अशोक के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जो युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अन्य परिस्थितियों में शौर्य प्रदर्शन करने वाले सैनिकों और नागरिकों को प्रदान किया जाता है। सम्मानित अशोक चक्र पदक आकृति गोलाकार पदक सोने से मढ़े कांस्य से निर्मित, पदक का व्यास 35 मिलीमीटर का, अग्रभाग पर 24 तीलियों का अशोक चक्र अंकित। यह चक्र निरंतर गतिशीलता, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक होता है। चक्र के चारों ओर और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। दिवस परेड 2026 वाद्य यंत्र प्रस्तुति भारत की सांस्कृतिक एकता और राष्ट्र चेतना का एक गौरवशाली उत्सव है, जिसे आज आपके समक्ष श्री लोकेश आनंद जी के निर्देशन में विविधता में एकता को दर्शाते हमारे देश के प्रख्यात शास्त्रीय संगीतकार एवं पारंपरिक लोक कलाकार इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आपके समक्ष लाए हैं।
had true tenure with the elite 50 Independent Parachute Brigade, 42 Armored Regiment in December 1991, a third-generation Army officer. He carries forward a proud legacy of service. He has commanded the 42 Armored Regiment, an Independent Armored Brigade, the School of Armored Warfare, and an Operational Surveyor in Northern Command, and presently serves as the Chief of Staff, Headquarters, Delhi area. आत्मनिर्भर भारत के सृजनकार और सारथी, विकसित भारत 2047 के दृष्टा, यशस्वी युग पुरुष, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के अनुरूप भारतीय सेना ऊर्ध्व संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है, जिसके लिए आधुनिक तकनीकी दक्षता हासिल कर स्वदेश में ही रक्षा हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित इन उपकरणों में भारतीय कारीगरों का समर्पण और देश की मिट्टी की सोंधी महक है। घर आएगा दुश्मन की नीयत में कोई वाला को, हुआ प्रहार और भरपूर, जो अंत नहीं था, सिर्फ पहला अध्याय था, ऑपरेशन सिंदूर। और मंच की ओर अग्रसर हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता। सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र, सेवानिवृत्त। सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार, परमवीर चक्र, जिन्हें गणतंत्र दिवस पर आज कई अन्य जेसीओ के साथ ऑनरेरी कैप्टन के रैंक से सम्मानित किया गया है। इनके पीछे अशोक चक्र विजेता मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला, अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। आप सभी जानते हैं परमवीर चक्र युद्धकाल तथा अशोक चक्र शांति काल में असाधारण वीरता तथा आत्म बलिदान के लिए प्रदान किए जाने वाले वीरता सम्मान। And ladies and gentlemen, now approaching the saluting days is the European Union contingent of 4 flag bearers on 3 ceremonial vehicles. European Union military representation is led by Colonel Frederick Simons-Prout, acting on behalf of the Director General of the European Union Military Staff. The right side vehicle, aligned alongside the second ceremonial, carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states alongside the flag of the European Union Military Staff, the permanent military body within the EU's institutional framework for security and defence. The left side view alongside the first ceremonial vehicle carries the flag of EU Naval Force Atlanta and EU naval operations conducted under the EU Common Security and Defence Policy in the Indian Ocean and the Red Sea region. These flags represent the European Union's operational presence in support of international maritime security. अब आपके सामने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही बैटल एरिया फॉर्मेशन, जो आधुनिक युद्ध के अभिन्न अंगों को एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इस फॉर्मेशन में सबसे पहला दस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट का। रेजिमेंट ने 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भालों और लान से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, 61 कैवलरी रेजिमेंट का हर योद्धा है बंदा बहादुर सा निर्भीक वीर। रेजिमेंट हमारी पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशनल रोल में सक्रिय है। रेजिमेंट रणनीतिक स्थापनाओं की सुरक्षा और सूचना एकत्रित करने के कार्य में निपुण है। रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। और अब मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली को दर्शाते मैकेनाइज्ड कॉलम्स आप देखेंगे। ये दस्ते पूरा वेपन सिस्टम है जिन पर लगे लॉयटर ड्रोन्स को लाल रंग से दिखाया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं मंच के बाईं ओर से कर्नल विजय प्रताप सिंह सेना मैडल के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत का परचम बड़ी शान से लहराते चार मुद्दा दुनिया दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर घुसकर उसकी बनावट, हथियार, संख्या आदि की जानकारी हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम है। और ये देखिए कर्नल विक्रांत शर्मा सेना मैडल के नेतृत्व में ऊपर आसमान में आधुनिक
अवैध जहाज से दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेद कर उसे कमजोर बनाता है। युद्ध टैंक अर्जुन। नए भारत के ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांकने की काबिलियत रखते हैं। भारत में विकसित रिएक्टिव कंचन तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर युद्धक शक्ति तथा फौलादी कवच प्रदान करता है। ये टैंक लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान में भी दौड़ सकते हैं। भीष्म पितामह की तरह अटल, अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदी T-90 और मेन बैटल टैंक अर्जुन। अगला दस्ता BMP-2 सारस एवं नाग मिसाइल सिस्टम का ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो बख्तरबंद और मैकेनाइज्ड दस्तों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। ये दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने में, पैदल सेना को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित रूप से पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है से सुसज्जित BMP-2 सारस। साथ ही आपके समक्ष नाग मिसाइल सिस्टम जो 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को भेजने में सक्षम 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दाग सकता है। अगला दस्ता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस का जो पैराशूट द्वारा या पैदल दुश्मन के इलाके में घुसते हैं। इनके साथ इन्फेंट्री के सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस सबसे आगे ड्रॉप टैक्टिकल बॉर्डर जिसके स्नाइपर तैनात है जो घात लगाकर 1.5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के कमांडर को फेल कर सकता है। इस गाड़ी पर एक सर्वेलेंस ड्रोन भी लगा आप देख सकते हैं जो निरंतर दुश्मन की जानकारी अपने कमांडरों तक पहुंचाता है। और इसके ठीक पीछे 2 और टेरेन व्हीकल्स मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन पर नागास्त्र और चॉनेट नामक लॉइटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं। और इन दोनों ATV के पीछे आप देख सकते हैं हॉलर व्हीकल चल रहा है। इन सैनिकों ने आप देखेंगे किस तरह से खास किस्म के चश्मे पहने हुए हैं। स्वदेश में दूर से दुश्मन को देखने में मदद करता है। इस गाड़ी के पीछे अगर आप अपना ध्यान ले जाएं, आप देखेंगे 2 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स जिन पर भारत में निर्मित हथियार लगाए गए हैं। मंच की ओर बढ़ने वाले LSB पर आप देखेंगे भारत में ही निर्मित ईगला मिसाइल लगी है जो 5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सरफेस टू एयर मिसाइल है। दूसरे LSB पर आप देख सकते हैं हेवी मशीन गन लगाई गई है। और इसके पीछे जो ट्रेलर आप देख सकते हैं नवीन और फुर्तीले जिन पर हमारे नए भारत के रोबोटिक म्यूल्स भी लगाए गए हैं। और अब आपके समक्ष 4 स्वचालित वाहन जो कि निगरानी, रेकी, दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के लिए अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोटक IED का पता लगाना और निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। ये इन्फेंट्री दस्तों का युद्ध में सहयोग करते हैं। खड़ी चट्टानों के बीच दौड़ता है में भी राज करे, बर्फीली हवाओं से ना डरे, गहरी खाइयों को पार करे, सैनिकों की ढाल बने, दुश्मन की चाल का रुख मोड़ दे। इसके बाद भारतीय थल सेना के 2 नए ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें 21वीं सदी के हथियार ड्रोन के प्रभावशाली इस्तेमाल के लिए शुरू किया गया है। ये है शक्तिवान रेजिमेंट तथा दिव्यास्त्र बैटरी। मंच की ओर अग्रसर इनके वाहनों में स्वॉर्म ड्रोन, टेथर ड्रोन लगाए गए हैं जो तोप खाने को और सबल बनाते हैं। इनमें हैरो, मिनी हार्पी, पीस कीपर और स्काई स्ट्राइकर जैसी एरियल लॉइटरिंग म्यूनिशन लगाया गया है जो शक्तिवान रेजिमेंट की मारक क्षमता को 200 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है जिसे शीघ्र 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। दिव्यास्त्र बैटरी के वाहन में मैप्स नामक ऐसा सर्वेलेंस ड्रोन लगा है जो 25,000 फुट तक की ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखता है तथा दुश्मन की सटीक जानकारी दे सकता है।
नई पीढ़ी के स्वदेश निर्मित मानव रहित वॉर है और इनके पीछे भारत की स्वदेशी मारक क्षमता की टंकार धनुष तथा अमोघ ऐसी तोपें जो बोफोर्स का उन्नत स्वदेशी संस्करण है 40 किलोमीटर तक सटीक एवं विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम, 15 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में सक्षम है। अमोघ स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ऐसी एडवांस क्रूड आर्टिलरी गन जो 48 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ बर्स्ट मोड में प्रति मिनट 5 राउंड दाग सकती है। सर्विलेंस देने के लिए इनमें ड्रोन्स भी लगाए गए हैं। अब आपके सामने नवीनतम एवं अनूठा यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र भारत में ही निर्मित। इस रॉकेट लॉन्चर में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर ग्रुप में 2 रॉकेट और उसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल जो खुली हुई आपके समक्ष दुश्मन पर आग उगलने को तैयार। और तो और इसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा दुश्मन इस मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है क्योंकि उसी ने पिछले साल इसकी मारक क्षमता का स्वाद चखा है। ब्रह्मोस है ध्वनि से तेज, आकाश को चीरती हुई हिलाए दुश्मन की धरती, ये है ब्रह्मोस। जब दिया शत्रु ने दुस्साहस और पड़ी आन पर परछाई, टूटा पौरुष का कीर्तिमान तू एक पड़ा 100 पर भारी। ऑपरेशन सिंदूर के ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार को नया बल देने वाले वायु रक्षा के 2 प्रचंड हथियार, आकाश हथियार प्रणाली तथा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अब मंच की तरफ बढ़ते हुए आकाश स्वदेशी रूप से विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अवरुद्ध 300 क्रूज मिसाइल के खिलाफ हमारी सेनाओं को एक सशक्त कवच प्रदान कर रही है। अफसराने मंच के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एवं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन शक्ति। यह युद्ध के निकट ही ड्रोन्स के निर्माण, रखरखाव, मॉडिफिकेशन, रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है जिससे भारतीय सेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और भविष्य के युद्धों के लिए हमारी तैयारियां और सशक्त बन रही है। आज इसके ऊपर आप देख रहे हैं भारतीय सेना के द्वारा बनाए गए एडवांस ड्रोन बाज, सुदर्शन, खरगा चक्र एवं नवस्त्र 81। अगला वाहन नए भारत का नवीनतम इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर। पहलगाम में 26 निर्दोष वासियों के साथ की गई बर्बरता के बाद शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में भारत ने दुश्मन पर जो प्रहार किया उसे उसकी कई पीढ़ियां याद रखी। देश का हर नागरिक चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ डटा रहा। हमारी सेना की तीव्र शक्ति ने 88 घंटे में अनेकों आतंकी ठिकानों को बर्बाद करते हुए भारत के नए नॉर्मल का संदेश दिया। बाल का अग्रभाग हमारे शीर्ष नेतृत्व के प्रखर मार्गदर्शन को दर्शाता है, मध्य भाग होल ऑफ नेशन का प्रतीक और आखिरी भाग हमारे S-400 तथा ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार की कहानी बयां करता है। वर्तमान और भविष्य का प्रतीक ये वाहन माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकलन के अनुरूप सुदर्शन चक्र को भी प्रदर्शित कर रहा। अब आपके समक्ष गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाते हुए पहली बार गर्व से आगे बढ़ते हुए लद्दाख की नुब्रा वैली के वासी डबल हम्प ऊंट, इनका डबल हम्प इनको -40 डिग्री सेल्सियस और 15,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी सहजता से लॉजिस्टिक सप्लाई, पेट्रोलिंग और 250 किलो भार ढोने में अत्यंत सक्षम बनाता है। उन्हीं के पीछे संस्कारी कोहली जो कि 70 किलोमीटर एक दिन में 60 किलो सामग्री ढोने में सक्षम हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के ये भी है सच्चे शूरवीर। और देखिए स्नो स्कूटर के साथ बड़े गर्व से पंख फैलाए हमारे सोल्जर बाज जिनकी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये देखिए मां भारती की गोद में पले मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड और चिपी पराई जो विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। ये भी है भारतीय सेना के सच्चे
सच्चे शूरवीर। ये है भारतीय सेना की अनूठी जागीर, ये है योद्धा, ये है हमारे हिम योद्धा। और ट्रू अरुणाचल स्काउट्स के लेफ्टिनेंट अमित चौधरी के नेतृत्व में अगला दस्ता लद्दाख से अरुणाचल तक फैली हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी नवगठित मिश्रित स्काउट्स मार्चिंग दस्ता। कंटिजेंट में सिक्किम स्काउट्स, अरुणाचल, कुमाऊं, लद्दाख, गढ़वाल, डोगरा स्काउट, सन ऑफ द सॉइल के आधार पर आधारित सीमा व सीमा पार की भाषा, बोली और भूगोल में पारंगत, शत्रु के इलाके में 25 किलोमीटर भी प्रवेश कर सकते हैं और बिना आहट वापस विजय की सूचना लेकर भी आते हैं। और अब कर्तव्य पथ पर ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स रेजिमेंट के सुबेदार मेजर प्रकाश चंद्र जोशी के नेतृत्व में पैराशूट रेजिमेंट, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रेजिमेंट और राजपुताना राइफल्स के संयुक्त सैन्य बैंड में 74 संगीतकारों का दस्ता जो वंदे मातरम की धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। The contingent marking off the Kartavya Path is the Rajput regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput, one of the oldest and most decorated infantry regiments of the Indian Army with over 250 years of distinguished service. Naik Yadunath won Paramveer Chakra. The brave soldiers were twice honored with Ashoka Chakra for their extraordinary valor. Yudh Ghosh, second to none. Contingent advancing on Kartavya Path are the brave soldiers of the Assam Regiment, led by Captain Aryan of 6th Assam. The regiment, which displayed its valor and courage in Burma during the World War II, comprised soldiers from all the northeast states. However, Harpazan of this very regiment was fortunately appointed with Ashoka Chakra for his brave eliminated terrorists. The contingent marching party reflects the Indian pride. Training Center and 11 Gorkha Rifles comprising 74 positions. The band is led by Subedar Kul Bahadur Thapa. Dressed in their crisp olive greens, their each step delivers pride, glory and determination. The band is playing the tune Hora Ejiga. Ladies and gentlemen, marching along Kartavya Path is the proud Jammu and Kashmir Light Infantry, led by Captain Vedant Sethi of 2nd Battalion Jakla. Impeccably turned out, its officers, junior commissioned officers and soldiers display exceptional valor, unity and professionalism. The regiment was born in the crucible of 1947 when ordinary citizens rose to defend their homeland, earning the immortal motto, born in battle, baptized by blood. Their motto, Balidanam Veer Lakshman. चौड़ी छाती चटक चाप कर्तव्य पथ पर आर्टिलरी रेजिमेंट का मार्चिंग दस्ता रेजिमेंट के कैप्टन रविंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में आर्टिलरी का हर बार दुश्मन की सांसों पर अंतिम मोहर विनाशकारी विध्वंसक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों और दुश्मन हवाई अड्डों को बर्बाद करने में निर्णायक भूमिका। संयुक्त सैन्य बैंड का दस्ता सुबेदार ए खान के नेतृत्व में शेर जवान की धुन पर सलामी मंच के साफे से सुरलहरियां बिखेरता हुआ। इस बैंड में 74 संगीतकार शामिल हैं। और अब देवियों सज्जनों, भैरव बटालियन कंटिंजेंट 17 days की ओर बढ़ते हुए
कमान संभाली है फोर्ट हेयर बटालियन के मेजर आईजी कोर्खा ने। नवगठित ये एक विशेषीकृत आक्रमणकारी पैदल सेना इकाई है जो इन्फेंट्री और विशेष बलों के बीच सेतु का कार्य करती है। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लिखित श्लोक देव शिवावर मोह एहे शुभ कर्मण से कपूर करूं को गुनगुनाते हुए ये वीर योद्धा अपने गर्जन वाले युद्ध के नारे से डराते हैं। जो बोले सो निहाल का सीखेगा। Marching proudly along Kartavya Path is the Indian Navy contingent, 144 young and spirited sailors of immaculate formation, moving shoulder to shoulder with precision and discipline. They reflect naval professionalism at its finest. The contingent is proudly led by Lieutenant Karan Narayan as Lieutenant Commander, and Lieutenant Pawan Kumar, Lieutenant Dilip Kumari, and Lieutenant Varun Ravaiya as Sergeant Commanders. Following the naval contingent is the Indian Navy tableau, he is anchored in tradition, sailing into self-reliance and innovation. Commanding the tableau are Lieutenant Commander Rupa A and Lieutenant Commander Vimal A, both Shaurya Chakra awardees who circumnavigated the world for iron battalions and above the globe in the forward bar battles. While the ancient British Iron Super India and the Marathi Nation Gujarat recall the early promise. Approaching a majestic blend of four powerhouses, the Sindoor formation, MiG-29 Sukhoi 30 and Jaguar, led by Group Captain Jitendra Suryavanshi. These are the very machines that thundered across the sky during Operation Sindoor, with their underbellies carrying the same formidable arsenal. We also have the Mirage and the Tejas who showcased the mettle during Operation Sindoor. However, the formation showcases only multi-engine aircraft. Ladies and gentlemen, the Sindoor formation. Training, unity of purpose and unflinching commitment to duty. The marching contingent comprises 4 officers and 144 airmen. Contingent commander Squad Leader Jagdish Kumar, Flight Lieutenant Prakhar Chandra, Squad Leader Nikita Chaudhary and Flight Lieutenant Dinesh Murray. Together the contingent presents a powerful visual of its strength. और अब कर्तव्य पथ आगे आ रही है पूर्व सैनिकों की झांकी संग्राम से राष्ट्र निर्माण का। वर्दी के साथ ही वर्दी के बाद त्वरित तत्पर तैयार युद्ध में उपयोग में लाए गए युद्ध सामग्री की सेवा में
विद्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ IDS एवं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DMA रक्षा मंत्रालय की फ्री सेवा झांकी जो ऑपरेशन सिंधु संयुक्तता के माध्यम से विजय थीम को उजागर कर रही है। यह ऑपरेशन सिंधु में तीनों सेनाओं की सामरिक समन्वय क्षमता और एकीकृत शक्ति प्रयोग को दर्शाती है। Advancing in discipline formation along Kartavya Path is the Indian Coast Guard Band. The band is led by Uttam Adhikari Papanu G. Bam, marching to the resonant and stirring tune of Sare Jahan Se Acha. The band presents a powerful display of patriotism, discipline and the proud traditions of the Indian Coast Guard, filling the entire atmosphere with national pride. Standing at the forefront of India's march towards Atmanirbharta. Continuing behind them with pride and precision is the Bharatiya Tatraksha contingent, the sentinels of our seas, led by Assistant Commandant Nishi Sharma with Assistant Commandant Apurva Holi, Assistant Commandant Hardik and Assistant Commandant Lakshita Singh, guided by their motto, Vayam Rakshamaha, we protect. These men and women embody India's maritime strength and commitment to safety and security. Organization standing at the forefront of India's march towards Atmanirbharta in defense, showcasing the long-range anti-ship missile designs to meet coastal battle requirements of the Indian Navy. It's being represented by K. Prasad Roy, the outstanding scientist and defense director. Witness successful development in India and from the elite club of nations with hypersonic, with Ladies and gentlemen, approaching the saluting desk now is the vibrant and enthusiastic Central Industrial Security Force Band, led by Sub-Inspector Karan Singh Rajpurohit. The powerful brass notes fill the Cellular Avenue with patriotic fervor as the band plays the inspiring tune Amar Senani, evoking pride, valor and invincible spirit of the nation. Right behind them, marching smartly to the stirring rhythm, is the Central Industrial Security Force contingent, confidently led by Assistant Commandant Puchari Santosh Kumar. The energetic platoon presents a striking spectacle, moving in perfect synchronization with impeccable drill and flawless bearing. Adorned in a distinctive golden yellow headgear, the CISF personnel shine bright like the sun as they march past slowly there.
कमांडेंट जनार्दन पगार, सबऑर्डिनेट ऑफिसर हिंदी, माउंटेनियरिंग और एडवेंचर में अपनी अलग पहचान, विदेश में 231 चोटियों पर आरोहण, जिसमें माउंट एवरेस्ट में 4 बार आरोहण शामिल, 1 पद्म भूषण, 7 पद्म श्री, 2 कीर्ति चक्र, 6 शौर्य चक्र से सम्मानित। भारत तिब्बत सीमा बल के बाद दिल्ली पुलिस की जोशी उनके साथ कर्तव्य पथ पर सौरभ से लड़ने में बेहता अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का महिला मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस का, इसमें 8 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, 3 इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल तथा 100 कांस्टेबल शामिल हैं। इस रनवे को 1950 से लेकर आज तक निरंतर गणतंत्र दिवस परेड में देने का गौरव प्राप्त है। सीएपीएफ श्रेणी में 17 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का सम्मान प्राप्त है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। सीमा सुरक्षा बल का बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अलम चट्टोपाध्याय। ये बैंड हम है सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहा है। कदम से कदम, दिल से दिल मिला रहे हैं हम, वतन में एक नया चमन खिला रहे हैं हम। हमारी बाजुओं में आंधियों का जोर है, हमारी धड़कनों में बादलों का शोर है। हमारे हाथों में वतन की बागडोर है, ना बच के जा सकेगा जिनके दिल में चोर है। जो कहा है वो करके दिखा रहे हैं हम। और अब देवियों सज्जनों, कर्तव्य पथ पर दुनिया की सबसे बड़ी युवा वर्दीधारी संगठनों में से एक राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की टुकड़ी का मार्चिंग दस्ता, जिसमें 148 युवा और युवक छात्राएं शामिल है। दस्ते का नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा के सशक्त हाथों में। इस दस्ते में पूरे देश से एनसीसी की छात्राएं शामिल हैं। साहसिक और गतिविधियों जैसे पर्वतारोहण, राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग में प्रदर्शन करते हुए एनसीसी अपनी युवा शक्ति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सबसे अग्रणी है। बिरला बालिका विद्यालय पिलानी की कैडेट सलोनी यादव और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की कैडेट रुद्र कश्यप कर रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जाओ सारी जहां से अच्छा की धुन के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये संयुक्त एनसीसी बैंड। एनसीसी बैंड के ठीक पीछे राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों का मार्चिंग दस्ता, सीनियर अंडर ऑफिसर तौहीद अल्ताफ जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख निदेशालय के नेतृत्व में। इस मार्चिंग दस्ते में 148 मार्च सीनियर डिवीजन के कैडेट शामिल हैं, जिन्हें एनसीसी के सभी 17 निदेशालयों से चुना गया है। आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन। एनसीसी में लगभग 17 लाख कैडेट शामिल हैं, जो इसे विश्व की सबसे बड़ी युवा संगठनों में से एक बनाता है। Ladies and gentlemen, राष्ट्रीय कर्तव्य पर युवा भारत नेशनल सर्विस एक्टिविटी, a shining
Raj of Punjab Regiment, they playing the tune Indra Dhanush as they cross the saluting gate. Ladies and gentlemen, coming to us the saluting dais now is the first starter of the day. From the land of Red River and Blue Hills, the Assam Tackle. Themed Atmanirbhar Bharat, it celebrates Ashadi Kandi village, India's largest and most renowned cluster of traditional Assam terracotta artisans. Accompanying the tableau are women artisans dressed in traditional Mekhla Sador. सामने के भाग में राज्य की सांस्कृतिक ताकत और टेक्नो जल्दी को दिखाया सामने के भाग में आचार्य चरक, ऋषि पतंजलि और महर्षि अगस्त्य की प्रतिमाएं हैं। झांकी में आयुष मंत्रालय की प्रमुख पहलों को भी दर्शाया गया है। पिछले भाग में आयुष मिशन के तहत स्थापित शैक्षणिक संस्थान को दिखाया गया है। स्वस्थ भारत चरक पतंजलि अगस्त्य विभूति औषध पर्वत करे स्वास्थ्य पूर्ति काम करो के साधना से हो युवा शक्ति को बनाता है सशक्त, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, प्रशिक्षण देता है आधुनिक नवीन तकनीकों का ज्ञान, उद्यमिता की ज्योति जलाता, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ को देता उड़ान। सपनों की उड़ान लेकर हम आगे बढ़ चले, हुनर के सहारे अपने रास्ते खुद बना चले। और अब छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी जनजातीय वीर को समर्पित देश का पहला डिजिटल संग्रहालय, जिसमें आदिवासी समाज के वीर नायकों के बलिदान को विषय वस्तु बनाया गया है। झांकी के सामने दुर्गा समाज के वीर गुंडाधुर दिखाई दे रहे हैं। पिछले हिस्से में शहीद वीर नारायण सिंह को घोड़े पर तलवार लिए दिखाया गया है। छत्तीसगढ़
historic enactment of Bharatiya Nyaya Samhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita, and Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023, which came into force on 1st of July 2024. At the front, the 3 new logos are placed atop the new Parliament building. Across the top, slogans communicated in focus script. Now transitions into a powerful portrayal of God in Uttar Pradesh, rooted in heritage, driven by development, and aligned with the vision for a stronger India. Hornbill Festival's evolution into a model of self-reliant tourism. Revered as Hindki Chadri, the protector of conscience, faith and freedom, the sacred presence of Sri Sikh Granth Sahib honors supreme sacrifice. अगली झांकी केरल वाटर मेट्रो और 100% साक्षरता आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल, साथ ही ग्रामीण परिवेश में डिजिटल साक्षरता की ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती सरसू को स्मार्टफोन और लैपटॉप के साथ काम करते दिखाना जमीनी स्तर पर प्रतीक विकास का। झांकी में वाटर मेट्रो गाँव ग्रीन मोबिलिटी का प्रतीक दिखाया जा रहा है। इस प्रकार हरित परिवहन और डिजिटलीकरण समृद्धि का वो दिव्यधरा जिसने भारत को 1200 से अधिक वीरता पदकों का अनुभव उपहार दिया। इस देवत्व एवं वीरत्व को एक सूत्र में पिरोती झांकी आधारित है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम की विषय वस्तु।
पश्मीना की मुलायम चादरें, बुनती उंगलियां, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी उकेरे, पेपर मैशे के रंगीन खिलौने, चमके संक्रांति, केसर के फूल है राज्य की प्राण, बसौली चित्रकला चौकोर छटा बिखेरती और तो और रबाब, संतूर और बांसुरी की मधुर धुनें कर्तव्य पथ को जीवंत बनाती। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीए में गृह मंत्रालय की झांकी। यह झांकी आज भुज भूकंप के 25 वर्षों का स्मरणोत्सव विषय पर केंद्रित है। भुज के 25 वर्षों के स्मरण के अवसर पर यह झांकी दृढ़ता और संकल्प का उत्सव है। स्कूलों में सिखाए Now the Tamil Department of School Education and Literacy showcases Bharat's timeless knowledge legacy and its dynamic evolution under the National Education Policy, NEP 2020, portraying school education as a key driver towards Viksit Bharat 2047. The narrative spans from ancient wisdom to future-ready learning. Bringing clarity where there was uncertainty and rights where there was silence. This is governance at the grassroots. This is technology with purpose. This is Swamitva, mapping the future of rural India. क्योंकि आत्मनिर्भर पंचायत से होगा समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भारत. The tableau conveys how secure ownership empowers families, strengthens panchayat, which leads to a strong and self-reliant nation. Approaching the celebrity dais now is the Maharashtra tableau. Maharashtra, the land of festivals, is presenting the theme Ganesh Utsav. The tableau depicts a temple representing the Ashtavinayak of Maharashtra,
And on both sides of the tableau, along with Kartavya Path, women in traditional attire are performing the lazy folk dance. Celebrating Bengal's decisive role in India's freedom movement. Amar Shonaga symbolizes love for the motherland, revolutionary courage, mass participation, and the indomitable leadership of Netaji Subhash Chandra Bose. भारत प्रकाश से उज्जवल, ऊर्जा से सशक्त। प्रकाश गंगा आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत की ऊर्जा प्रदान करती राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से पूरे देश में बिजली के निरंतर और निर्बाध प्रवाह का प्रतीक स्मार्ट पावर, स्मार्टर होम की अवधारणा को रूफटॉप सोलर के माध्यम से प्रस्तुत करता। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और ईवी स्कूटी जो स्विचिंग ऑन इंडिया नियंत्रण व निगरानी प्रणाली का माता देवी अहिल्याबाई होलकर की देशभक्ति एवं संस्कृति प्रेम पर केंद्रित अगली झांकी मध्य प्रदेश की। अगले भाग में शिवलिंग के साथ लोक माता की प्रतिमा, मध्य भाग में वीर मां अहिल्या को एक अश्व पर दिखाया गया। अंतिम भाग में महेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर तथा किलों को चित्रित किया गया। मालवा की माटी से उठी थी एक लहर, सोमनाथ से काशी तक टूटे शिवालय, जिसने खड़े कराए फिर प्राण बसाए, देवी साज सिंगार सुशासन हट कर नारी शक्ति है, जिसकी पहचान पहुंची ओडिशा की प्रगति, परंपरा की जड़ों से आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छूती यात्रा, कृषि नवाचार से उद्योग तक का स्वावलंबी विकास, सांस्कृतिक विरासत, प्रौद्योगिकी, कुशल मानव संसाधन, डिजिटल क्षमताओं का संगम, ये है भारत की शक्ति, ये है ओडिशा राज्य की झांकी। Chico,
अनूठे और उच्च मूल्य कृषि उत्पादों के बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित कर रही अग्रभाग में एक महिला पारंपरिक परिधान में मणिपुर की पूर्वी पहाड़ियों उखरूल की प्रसिद्ध सिराजमुख वृक्षों की तोड़ाई मध्य भाग में चाकखाओं की पारंपरिक मड़ाई और पछाई एवं पिछले हिस्से में मणिपुर की पश्चिमी हिस्से को दर्शाया गया है। Famous for its magical gold inlay work, Kamahar. The art embodies timeless elegance, meticulous craftsmanship, and enduring brilliance. Song that is a symbol of devotion and spiritual dedication to our Mother India, Bharat Mata, reaffirming its significance in shaping India's freedom movement and national consciousness. Shruti represents India's rich oral tradition. Kriti marks the transition from oral to written expression, and Drishti showcases India's modern media landscape. The tableau has been conceived by celebrated and national filmmaker Sanjay Leela Bhansali. At the forefront rises Oregon's iconic Matri Mandir, a golden symbol of unity, peace, and sustainable living. संस्कृति मंत्रालय की दिल को छू जाने वाली झांकी वंदे मातरम की 150 वर्षों की यात्रा, राष्ट्र की आत्मा का शौर्य घोष वंदे मातरम, माँ तुझे प्रणाम करता। 150 वर्ष एक स्वर, बंकिम चंद्र के शब्द, गुरुदेव का गान। अधूरे वंदे मातरम को मराठी कलाकार विष्णुपंत पागनीस ने स्वर नहीं शौर्य दिया। मदनलाल भीमराव और खुदीराम बोस जैसे शहीदों से आज की जेन ज़ी तक युग बदले पुकार भी वंदे मातरम। Ladies and gentlemen, on this majestic Republic Day at Kartavya Path, the Ministry of Culture proudly presents Vande Mataram, the eternal resonance of Bharat.
marking the 150th anniversary of our national song. This national tribute, curated by the Sangeet Natak Akademi in collaboration with the North Zone Cultural Center Patiala, honors Rajshri Bankim Chandra Chattopadhyay's passages together evoke courage, resilience, and devotion to the nation. This grand presentation comes together under the creative vision of Dr. Sandhya Purecha, chairperson of the Sangeet Natak Akademi. The music is composed by award-winning maestro M.M. Kiribali, with additional lyrics by Subhash Sehgal. The powerful narration is rendered by Anupam K. Choreography is by Santosh Nair, and costumes are designed by Sandhya Raman. श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रातः स्मरणीय वंदे मातरम गीत को वर्षों से हर्षोल्लास से गाते भारतवासियों का हार्दिक अभिनंदन। वंदे मातरम केवल एक गीत ही नहीं, अपितु भारत की आत्मा की प्रतिध्वनि है, जो हम भारतीयों को एक सूत्र में बांधता रहा है और बांधता रहेगा। वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आओ हम सब एक सुर में भारत भूमि की इस गौरवपूर्ण एवं अद्भुत रचना को उत्कर्ष, उत्साह और श्रद्धा से नमन करें।
विश्व को शांति
स्वाधीनता की ज्वाला को प्रज्वलित करने वाला एवं भारत की संप्रभुता का उद्घोष करने वाला वंदे मातरम आज संपूर्ण विश्व में भारत के गौरव एवं सम्मान का प्रतीक है। सनातन की उस शाश्वत विचारधारा से उद्भुत तथा ऑपरेशनल उत्कृष्टता से भरे भारत को देखा, सीमाओं की रक्षा में सक्षम भारत को देखा। सरकार का सैलाब लेकर आ गई है टीम की कैप्टन असिस्टेंट कमांडेंट सीमा नाग एवं असिस्टेंट कमांडेंट नवीन कुमारी, जिन्होंने दी प्रभावशाली सलामी माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को। वाह क्या बात है, हर तूफान से लड़ने को अकेली काफी हूं मैं, हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले तेरी नींद उड़ाने को अकेली काफी हूं मैं। और शीघ्र ही आप देखेंगे बीले बुलेट फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे हमारे जाबाज, साहस से है चित विकसित इनका, विशाल वक्ष से शोभित करुणाई, अन्याय को सहने सकते प्रभार ये तत्पर सदा। और ये देखिए आ गए हैं हमारे जाबाज, दृढ़ निश्चय और साहस को दर्शाते बीले बुलेट फॉर्मेशन के माध्यम से बताते हुए कि आज हर विपदा से लड़ रहा है भारत, आज नए नए आसमान छू रहा है भारत। आत्मनिर्भर सेना के हैं हम भी, चहुं ओर अब ये नारा, जय हिंद के शूरवीर, जय हिंद के शूरवीर। और ये देखिए सर्वत्र सुरक्षा में आपके सामने आ गए हैं हमारे जाबाज, ये दर्शाते हुए कि हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पहली निगाहें सटीक बात चूक की कोई गुंजाइश नहीं। ये हमारे जाबाज सर्वत्र सुरक्षा फॉर्मेशन में आपके सामने। जंगल घना, छतरू छिपा पत्ते पहने, सीआरपीएफ का योद्धा आया बंदूक थामे कंधे पे, शत्रु पहचाने वीर योद्धा उसी घने जंगल में, दूर करके जंगल वॉरियर दुश्मन को मुठभेड़ में। जी हाँ, जंगल वॉरियर फॉर्मेशन में आपके सामने हमारे जाबाज, नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट ऋषि श्रीकांत कलामदेव द्वारा। मैं हूँ एक नवल सिपाही भारत की नई खोज का, मैं हूँ एक सफल योद्धा भारत की सक्षम फौज का। और अब आपके सामने शीघ्र ही आने वाले बेतार संचार डिजिटल इंडिया को दर्शाते हुए ये बता रहे हैं वैज्ञानिक तरीकों वाले हमने आए विश्व दृश्य के परिवर्तन हम, नई प्रगति नया सृजन हम, नई जागरण नई किरण हम, नई सदी के द्वार खड़े हम, लिए इरादे बड़े बड़े हम, नई शक्ति कर रहे वरण हम, नई जागरण नई किरण हम। और इसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं बीम रोल फॉर्मेशन में फिटनेस में सबसे कीमती धन जो कभी ना खोए, स्वास्थ्य से बड़ा कोई तोहफा ना हो। उठो जागो बनो फिटनेस में अटल, खुशहाल हो जीवन बनो स्वस्थ और प्रबल। जी हाँ, बीम रोल फॉर्मेशन के माध्यम से यही संदेश देते हुए हमारे जाबाज। और उसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं रथ फॉर्मेशन में आते हुए हमारे जाबाज ये बता रहे हैं कि हम देश का गौरव है, हम रील के नहीं रियल हीरोज हैं। क्या एकाग्रता, क्या संतुलन, सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए। और अब आप देख सकते हैं इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ योग की शक्ति फॉर्मेशन में हमारे जाबाज, इन्होंने तो बाइक को ही जिम बना दिया है। क्या संतुलन, क्या एकाग्रता, हम सबको व्यायाम का महत्व, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाना हर हाल में जरूरी है बताते हुए ये बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और ये देखिए आपके सामने लक्ष्य फॉर्मेशन में बताते हुए निशाना सीधे सटीकता भारतीय सेना के वीर आत्मनिर्भरता की शक्ति से दुश्मन को करे ये चीज चौकन्नी रखे नजर हमेशा एक क्षण में करे बार लक्ष्य साधे अचूक विजय का लहरा दे परचम बार बार। और ये देखिए 18 फीट की लैडर से ये संदेश देते हुए कि बागियों का सीना चीरते हुए आसमानों की हद तक फहराऊंगी तिरंगा। हम में अपार देशभक्ति है, हम भारत की नारी शक्ति है। सीमा पर अड़ जाऊंगी, मंगल तिलक लगाऊंगी, तेज जरा भी नहीं करूंगी दुश्मन को, सबक सिखाऊंगी, समता रस बरसाऊंगी, जौहर सभी दिखाऊंगी, हर दीवार गिराऊंगी। इरादे में और सजन आप
आपके सामने 18 फीट की लैंड पर हमारे जाबाज छूलो फॉर्मेशन को दिखाते हुए, और अब आप देखिए जरूर फॉर्मेशन आपके समक्ष अद्भुत नियंत्रण के साथ आकाश में पंख फैलाए जरूर की आकृति में हमारे जाबाज आज जरूर की भारतीय सेना उड़ान भरे, दूर दूर तक देखे, दुश्मन की चाल भांप ले, जैसे गरुड़ चीर दे शिकार घर दबोचे, वैसे आज हमारे योद्धा शत्रु को मिट्टी में मिला दे। और ये देखिए वायु फॉर्मेशन, आओ मिलकर हम सब करें संकल्प महान, हरित क्रांति लाएं, बनाए भारत को हरा भरा, पेड़ लगाएं हर गली हर आंगन हर द्वार, इसी संदेश को देते हुए हमारे जाबाज। और ये देखिए एकाग्र फॉर्मेशन में अपनी उत्कृष्ट एकाग्रता का अद्वितीय उदाहरण देते हुए, नहीं राह में चलना जाने, चलना ही बस चलना जाने, भारत माँ के सर पर हर वक्त विजय का ताज पहनाऊंगी, दुश्मन कैसा भी हो दांत खट्टे करके आऊंगी, दुश्मन कैसा भी हो दांत खट्टे करके आऊंगी। और अब आपके सामने हमारे जाबाज पावर ऑफ CAPF को दिखाते हुए, हम आन हैं, हम भारत माँ की शान हैं, हम एक हैं, हम नेक हैं, हम विकसित भारत का नया जोश है, हम न्यू इंडिया का उद्घोष है। अब कोटि बाधाओं को सहकर हम सामना कर रहे हैं डटकर, अब रुकते हैं हम मंजिल पर पहुंचकर, अब ऐसी सुनाते हैं हम सबको तान कि सब जान जाएंगे भारतीय सेना की शान, कि सब जान जाएंगे भारतीय सेना की शान। और सीधे आप देखेंगे 9 बाइक पर 42 जाबाज जैसे टीम इंडिया, हिमालय से अटल एक चट्टान जो फौलादी इरादे लिए, जो न कभी डरे न झुके न रुके, बड़े शान से राष्ट्र ध्वज SSB ध्वज एवं CRPF ध्वज को लहराते हुए, आंधियां आए तो सही, बाधाएं आए तो सही, खड़े हैं फौलादी, कोई आंख उठाए तो सही, रुकावटें हटाते चले, अंधेरे मिटाते चले, सजग सजग बढ़ते चले, इमारत नहीं बढ़ते चले, हम सक्षम सेनाएं तीव्र गति से बढ़ते चले। विश्वास हर विमान ने निभाया राष्ट्र धर्म का आधार। And now the skies open up for a first formation, the Arjun formation, named after Marshal of the Indian Air Force Arjun Singh. Leading the formation is a C-130J flown by Group Captain Rahul Rawat, with 2 C-9 tactical transport aircraft. With Arjun 2, we have Group Captain S.K. Vasan and Big Commander S. Sachin. Ladies and gentlemen, on the but now the Arjun formation. Of the Indian Air Force, flown by Group Captain Jeetu Yadav and Squad Leader Khalid Malik, and Wing Commander Deepak Prasad with Squad Leader Ram Sharma. The PHI, with its unmatched maritime reconnaissance and anti-submarine prowess, and the Sukhoi 30s after precision maritime strike power, together form a formidable shield over our maritime frontier. यह फॉर्मेशन दर्शाता है भारतीय वायुसेना और नौसेना की संयुक्त शक्ति आज एक साथ एक उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। द वरुणा फॉर्मेशन। And its commitment to sovereignty. Even the winds pause to witness the fall of the pride for Air Force and a powerful promise of tomorrow. Reaching the saluting days now, the Vajram formation. Itself becomes the canvas of victory, the Vijayanath echoing heart of the proud nation. So keep looking at the aircraft and let's see how many rolls can count. With the celebration of discipline, dedication and the indomitable
जान वाला सुदृढ़ संप्रभु लोकतांत्रिक संविधान की मजबूत जड़ों का विशाल वृक्ष है, जिसकी विकास रूपी शाखाएं अब खिलती ही रहेंगी। अब जगत गुरु बन भारत रूपी वृक्ष फलित रहेगा। स्वदेशी को अपनाकर आदर्श विश्व में बन चुका है भारत। ये बताने जा रहे हैं विश्व को कि अब विश्व आकाश तिरंगे में रंगेगा और प्रत्येक भारतवासी अब चलता रहेगा, उड़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। ये है विकसित भारत का पैशन। Added a special fervor in today's grand celebrations of our Republic Day. और अब भारत के माननीय राष्ट्रपति जी प्रस्थान करेंगे और उनके साथ गणतंत्र के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री एंटोनियो कॉस्टा तथा यूरोपीय आयोग की माननीय अध्यक्ष श्रीमती उर्सुला वॉन डर लेयन होंगे। आज हिमालय बता रहा है, डरे न हम आंधी और तूफानों में, खड़े रहे हम अपने पद पर आज हर एक आपदा और चुनौती में। अचल रहे हम लाख कठिनाइयों के आने से, मिलती है अब सफलता हमको हर क्षेत्र की चुनौती से। जितनी भी बाधाएं आए उन सब से लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण को रेखांकित करता गणतंत्र का महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विकसित देश के लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहा है। आज का ये परेड प्रतिबिंब है इसी संकल्प सिद्धि का, जब हमारी तीनों सेनाओं की त्रिशक्ति एक मल्टी डोमेन नेटवर्क सेंट्रिक इंटीग्रेटेड सोच के साथ नए भारत की अजेय सेना के निर्माण के नए कीर्तिमान गढ़ रही है। आज हर विपदा से लड़ रही है भारतीय सेना, नए नए आसमान छू रही है भारतीय सेना। आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। आज शिखर की ओर अग्रसर हो रही है भारतीय सेना, जिसका प्रमाण है आज का गणतंत्र दिवस परेड। प्रस्थान कर रहा है भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया। आज राजधानी की धरती आप सब देशभक्तों की उपस्थिति ऐसा आभास करा रही है, मानो जैसे आपकी हर सांस बताता भारतीय सेना की प्रबल एवं प्रबुद्ध प्रशिक्षण, सेवा, कर्तव्य परायणता की पहचान कराता। अखिल विश्व में नहीं किसी के आगे कभी झुकेगा। नए उमंगों, नए उल्लासों से ये तिरंगा रोज उगेगा, ये तिरंगा रोज उगेगा। गणतंत्र दिवस 2026 नेताजी की प्रतिमा से अलंकृत कर्तव्य पथ मानव निर्भाग्य पर पुनः मुस्कुरा रहा है। गुलामी की मानसिकता को पूर्ण त्याग दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तत्पर भारत अपनी गौरवशाली विरासत को सजाकर संजोकर रखने वाला विकसित भारत। आइए गणतंत्र की पावन बेला में कर्तव्य पथ से कर्तव्य निष्ठा का संकल्प लें। बिल्कुल बगल में मोदी का फोटो ले रहा है। देश हमारा सबसे सुंदर, सबसे न्यारा, उजियारे में चमकता हुआ सितारा। देश हमारा तूफानों में बढ़ता रहता, देश हमारा धूप सरीखे चढ़ता रहता। देश हमारा संघर्षों में ज्यादा निखरा, इसका गौरव जग के कोने कोने बिखरा। चाहे कुछ हो जाए हम तिरंगा फहराएंगे, ऊंचा ऊपर इसे उठाकर देश महान बनाएंगे। अंत्योदय से राष्ट्रोदय का सपना
आज साकार हो रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः मानव धरातल पर आकार ले रहा है। नया भारत बेमिसाल बाकमाल। बात सबसे बड़े टीकाकरण के संकल्प की हो। जन जन की भागीदारी से देश के पिछले कुछ वर्षों में ऐसे अनेक अभूतपूर्व पड़ाव पार किए। लखपति दीदी, पीएम आवास योजना, जनधन खाता, किसान सम्मान निधि, हर घर जल, नमामि गंगे, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, आंगनबाड़ी मिशन शक्ति, स्वच्छता अभियान, अनेकों भागीदारी प्रयास। मकसद सिर्फ एक, सेवा निष्काम, हर काम देश के नाम। और ये देखिए, इतने प्रेम, इतने उत्साह, इतने सौहार्द से सभी का अभिवादन स्वीकारते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी मानवीय संदेश दे रहे हो कि नौजवानों, भारत देश की नई तकदीर बना दो। फूलों के इस गुलशन से चुनौतियों के कांटे हटा दो। स्वदेशी को अपनाकर बना दो देश को आत्मनिर्भर अपने। रह जाए ना देखो अधूरे कहीं सुंदर सपने अपने, क्योंकि पासे सभी पलट गए संघर्षों की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत की भाल के। मंजिल पे आया देश हर तूफान, हर चुनौती को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े हैं बादल गुलाल के। अब वक्त आ गया है भारत माँ के हंसते हुए फूलों, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो। कर्तव्य पथ हो, विजय चौक, लाल किला, एनसीसी प्रधानमंत्री रैली या लगभग 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की परिक्रमा करता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जब शीर्ष नेतृत्व नित्य देशवासियों से जुड़ता है, ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला से संवाद करता है, तो ये एक अद्भुत प्रेरणा पुंज बन जाता है। लोकतंत्र की जीवन आत्मा का दर्शन कराता है। हमारे प्रधानमंत्री गणतंत्र पर जिस आत्मीयता से लोगों से मिल रहे हैं, प्रतीक है उन आदर्शों का जहां शीर्ष नेतृत्व जनता के साथ उनके बीच में खड़ा है, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय का प्रतीक है। आज आपके समक्ष इतने सौहार्द से सभी का अभिवादन, इतने अपनत्व से स्वीकारते हुए माननीय प्रधानमंत्री मानवीय संदेश दे रहे हो कि भारत मस्तक अब झुकेगा नहीं।